Winners are not people who never fail. Winners are not people who never fail, but people who never quit. Who are winners? The people who never quit. So, with such an inspirational thought, you also should never quit. Go on practicing your accounts. A very good morning to all my dear students and a warm welcome in the class of accounts. Today we will start with question number 7 of bank reconciliation statement, chapter number 11. Please do not forget to practice. Practice it more until you don't go through. So never quit that I am not able to solve. With inspiration from winners is they never fail, but they never quit. Okay, now question number 7 on page number 291. Cash book of Aditya shows bank balance of 9,000 on 31/10/15, which does not tally with the bank balance as per passbook. Prepare Aditya's bank reconciliation statement from the information given below. Now there is the difference in the bank column as per cash book and as per passbook, and the difference is of 9,000. Now this 9,000 is the difference in cash book and this is your bank balance. Now you all know cash book bank balance is on debit side. So we will start with our sum from debit side. Okay, what we are going to write is bank balance as per cash book of rupees 9,000. Okay, next, number 1, checks of 51,000 were deposited, out of which checks of 41,000 were credited in bank till 31/10/2015. Now students, we are preparing BRS as on 31/10. हमने चेक्स डिपॉजिट कर दिए हैं, दैट मीन्स हमने अपना कैश बुक में रिसिट साइड में 51,000 शो कर दिया है. Same this 51,000 should appear over here in passbook on credit side, but till now till 31/10 कितने के चेक्स आ गए हैं? 41,000 के चेक्स ऑलरेडी डिपॉजिट हो गए हैं. सो चेक्स ऑफ 10,000 are not credited. Okay, so in the column of particulars we will write checks of rupees 51,000 deposited out of which checks of rupees 41,000 are only credited till 31/10/15. ओके, तो रिमेनिंग अपन क्या करेंगे? अभी क्रेडिट करेंगे ऑफ 10,000. इज दिस क्लियर? मूविंग फर्दर on second transaction, a check of 2,300 is drawn and recorded in cash book but yet not given to creditor. आपने चेक बना दिया है पर चेक आपने अभी तक क्रेडिटर को नहीं दिया है. अगर क्रेडिटर को आपने चेक नहीं दिया, दैट मीन्स इट इज नॉट प्रेजेंटेड इनटू दी बैंक. बैंक में उसको आपने प्रेजेंट किया ही नहीं है और आपने चेक 2,300 का बना दिया है.
सो 2300 आपने कैश बुक में यहां पर शो कर दिया है, पर आपने पासबुक में उसको शो नहीं किया है। सो 2300 इज लेफ्ट in passbook as we have yet not given to the creditor. So that's why it shows the difference of 2300. What we are going to write? Number 2. Check drawn but not given to creditor. Okay, 2300. Is this clear? Moving further on third transaction, bank has paid 1700 for insurance premium through electronic clearing service which is not recorded in cash book. बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम अपने हिसाब से पे कर दिया है, बैंक ने पेमेंट कर दिए हैं, सो इट इज ऑन दी पेमेंट साइड। पेमेंट साइड कितना आ गया है? 1700 आ गया है। ओके, पासबुक का पेमेंट इज ऑन डेबिट साइड, कैश बुक का पेमेंट इज ऑन क्रेडिट साइड। सो यहां पर और 1700 को आना बाकी है। सो इन द कॉलम्स ऑफ पर्टिकुलर्स वी विल राइट इंश्योरेंस प्रीमियम पेड थ्रू बैंक not recorded in cash book, okay, of 1700. Is this clear? Next is a customer has deposited 3200 directly in Aditya's bank account which is not known to him up to 31/10/2015 and which is known to him on 2/11 that is 2nd of November. हमको पता चला है, वी आर आदित्य, हमको पता चला है, पर हमें पता चला है कब? नवंबर में। नवंबर के पहले ही हमने 31/10 को क्या किया? अपना BRS स्टेटमेंट बनाया है, जिसकी वजह से पता नहीं चला है हमें कि 3200 हमारे एक कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा हमें दे दिया है। सो नाउ ही हैज डिपॉजिटेड डायरेक्टली, सो 3200 आपका रिसिट साइड में आ गया है। पासबुक का रिसिट इज ऑन क्रेडिट साइड, कैश बुक का रिसिट इज ऑन डेबिट साइड। यहां पे 3200 का आना अभी और बाकी है। सो अगेन इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर्स वी विल राइट अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड by customer in the bank not recorded in cash book। 3200 से आपका रिकॉर्डिंग अभी हुआ नहीं है। Is this clear? Okay. Number 5, bank charges recorded by bank 70 is recorded twice in cash book by mistake. Please now pay attention. This concept is very much important and something new for you people. So pay attention what it is. हमें यहाँ पर क्या करना होगा? जैसे हम बनाते हैं कैश बुक एंड पासबुक, दिस इज रिसिट, दिस इज पेमेंट, पेमेंट एंड रिसिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड बाय बैंक 70। नाउ पासबुक में 70 आ गया है, कैश बुक में भी 70 आ गया है, बट इट इज ऑन इट इज फॉर ट्वाइस। पेमेंट कहां है कैश बुक का? दिस साइड। ट्वाइस रिकॉर्ड हो गया है, मींस 2 बार यहां पर रिकॉर्ड हो गया है। आना कितना चाहिए था? ओनली 70 शुड अपीयर इन कैश बुक ऑन क्रेडिट साइड, बट इट इज ट्वाइस। अभी हमें क्या करना होगा? ये 70 यहां पर जो ज्यादा आ गया है, इस इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हमें एक डेबिट कर देना होगा।
इज दिस क्लियर? 70 यहां पर पासबुक में है, 70 ही यहां पर कैश बुक में होना चाहिए। 70 की जगह पे ट्वाइस हो गया है, 140 हो गया है एंड इट इज ऑन दी क्रेडिट साइड। ऑपोजिट इफेक्ट देंगे, रिवर्स इफेक्ट देंगे तो एक 70 आपका अगर डेबिट साइड आ जाता है सो इट रिमेन्स ओनली 70 ऑन क्रेडिट साइड। सो हमें 70 क्या करना होगा? डेबिट करना होगा, जस्ट टू नलिफाई द ड्यूअल effect. Now again in the column of particulars we will write bank charges recorded twice in cash book by mistake. Okay, so in the column of debit हमें 70 लिखना होगा। इज दिस क्लियर? नाउ डेट और ट्रांजेक्शन 6. A check of 6750 deposited with the bank on 27/10/15 is dishonored, the information of which is received by Aditya on 1/11. Now we are preparing on 30/10. हमें इंफॉर्मेशन मिली है 1/11 को, एक दिन बाद। So before that, before 1/11 there was the difference of 6750. बैंक में हमने जो चेक डिपॉजिट किया था वो डिसऑनर हो गया है। सो नाउ बैंक ने उसका रिवर्स इफेक्ट दे दिया है। हाउ? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, जस्ट चेक इट आउट ओवर हियर। पहले हमने डिपॉजिट करवाया बैंक में तो यहां आया होगा रसीद साइड, जैसे ही डिसऑनर हुआ ऑपोजिट साइड उसका इफेक्ट आ गया ऑन डेबिट साइड। नाउ पासबुक का पेमेंट इज डेबिट, कैश बुक का पेमेंट इज ऑन क्रेडिट, यहां पर इफेक्ट आना बाकी है। सो अभी हमें क्या करना होगा? 6750 को क्रेडिट करना होगा। इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर्स वी विल राइट नंबर 6, check deposited is dishonored, not recorded in cash book of 6750. Is this clear? Okay, now on 7th transaction, checks of 4780 were drawn, out of which checks of 1770 were presented in the bank on 2/11/15. Totally checks drawn by us are 4780. हमने कैश बुक में पेमेंट कितना दिखा दिया है? 4780. ओके, जितना कैश बुक में पेमेंट है उतना ही पासबुक में 4780 का पेमेंट होना चाहिए था, बट नहीं हुआ है, जिसमें से 1770 के चेक्स जो हैं वो 2/11 को प्रेजेंट हुए हैं एंड वी आर प्रिपेयरिंग ऑन 30/10. नाउ हमें इसका डिफरेंस नहीं निकालना है। हाउ मच इज नॉट प्रेजेंटेड? 1770. 1770 ये हमें डेबिट करना बाकी है। ओके, डेबिट हुआ भी है बट ऑन 2/11, but we are preparing on 30, so there is the difference of 1770. रिमेनिंग इसका जो डिफरेंस है वो सारे हमारे पेमेंट में आ गए हैं, बट 1770 के चेक्स अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए हैं। सो लेट अस चेक इट आउट व्हाट वी आर सपोज टू राइट। Checks of rupees 4780 were drawn, but out of which checks of rupees 1770 were presented on 2/11/2015. So on debit side 1770.
Is this clear? 1770. Number 8. A check of 1320 was deposited in the bank, but it is not recorded in cash book. This check is not collected by bank till 31/10/2015. हमने चेक डिपॉजिट किया है 1320 को. नाउ प्लीज चेक इट आउट ओवर हियर. चेक हमने डिपॉजिट किया है 1320 का, पर बैंक ने हमें 31/10 तक उसको क्रेडिट नहीं दिया है. 1320 का जो क्रेडिट होना चाहिए था वो 30/10 तक हमें मिला नहीं है, 31/10 तक सॉरी नहीं मिला है. एंड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. कैश बुक में भी 1320 का हमें डेबिट नहीं मिला है. नाउ पासबुक में 1320 31/10 तक नहीं आया है. कैश बुक में हम 1320 को लिखना भूल गए हैं. सो डेबिट साइड भी नहीं आया है, इवन क्रेडिट साइड भी नहीं आया है. सो देयर विल बी नो डिफरेंस बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजेक्शन. सो इन द कॉलम्स ऑफ पर्टिकुलर्स what we are going to write is 8 no entry. okay, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा बिकॉज डेबिट एंड क्रेडिट बोथ साइड लिखना बाकी है. बैंक हैज क्रेडिटेड 130 फॉर इंटरेस्ट एंड डेबिटेड 60 फॉर बैंक चार्जेस इन पासबुक विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. दोनों ही रह गया है. इंटरेस्ट को क्रेडिट करना है, बैंक ने कर दिया है. ओके, एंड बैंक ने 60 रुपीज का चार्जेस डेबिट कर दिया है. नाउ दिस इज योर डेबिट एंड दिस इज योर क्रेडिट. फाइन. रिसिप्ट एंड पेमेंट, पेमेंट एंड रिसिप्ट. 130 हमें रिसीव हुआ है. सो 130 यहां पर कैश बुक में आना बाकी है, जो पासबुक में 130 आ गया है. पासबुक में पेमेंट साइड 60 आ गया है, कैश बुक में 60 को आना बाकी है. सो इन द वन ट्रांजेक्शन दो इफेक्ट्स होंगे, एक डेबिट में 130 एंड क्रेडिट में 60. ओके, सो इन द कॉलम्स ऑफ पर्टिकुलर्स, नंबर 1 बैंक credited interest not recorded in cash book. कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, अभी करेंगे. नंबर 2 बैंक डेबिटेड चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. सो अभी हमें रिकॉर्ड करना है 60 रुपीज से. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट बाय 900. नाउ कैश बुक का रिसिप्ट साइड इज ऑन दी डेबिट साइड. ओवरकास्ट है, ज्यादा है. आपको मैंने दो बातें सिखाई थी, अंडरकास्ट ऑन सेम साइड, ओवरकास्ट ऑन ऑपोजिट साइड. ये ओवरकास्ट है, इसको हम क्या कर देंगे, ऑपोजिट साइड इसका इफेक्ट दे देंगे, जिसकी वजह से ये इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट ऑन 10th डेट और 10th ट्रांजेक्शन, टोटल ऑफ receipt side in cash book is overcast on opposite side. Okay, next, bill receivable of 1200 discounted with bank is dishonored on 28/10/15 and bank has debited this amount with the noting charges of 20, but the entry for dishonor is not made in cash book till 31/12/10/15. ओके, एक बिल रिसीवेबल था जो डिसऑनर हो गया है और
कैश बुक में उसका एंट्री नहीं हुआ है। जैसे ही डिसऑनर हुआ होगा, हमारे अकाउंट को बैंक ने 1220 के साथ पेमेंट रिकॉर्ड कर दिया होगा, हमारा अकाउंट बैंक ने डेबिट कर दिया होगा। 1200 फॉर बिल रिसीवेबल एंड 20 फॉर नोटिंग चार्जेस विच इज नॉट डन इन कैश बुक, यहां पे होना बाकी है। ऑन क्रेडिट साइड अभी हमें BRS में करना होगा। ओके, in the columns of particulars it will be bill receivable discounted is dishonored and bank has debited with 20 rupees noting charges not recorded in cash book. जैसे ही पेमेंट अपन चेक करेंगे कैश बुक का, पेमेंट इज ऑन दी क्रेडिट साइड, सो 1220 ऑन क्रेडिट साइड। ऑन लास्ट, दैट इज bill payable of 700 maturing after 1 month was retired, means discounted by bank under rebate of 30 on 30/10/25, which is not recorded in cash book. Bills payable means this is the liability for us. 700 maturing after 1 month was retired by bank under a rebate of 30 on 30/10/15. बैंक ने 30 रुपीज डिस्काउंट करवाकर हमारा बिल पेएबल भरवा दिया है। 700 में से 30 माइनस करेंगे तो इट विल कम ₹670। पेमेंट हो चुका है फ्रॉम पासबुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। 670 को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एंड इन द कॉलम्स ऑफ पर्टिकुलर हमें लिखना होगा बिल्स पेएबल ऑफ ₹700 was retired by bank with the rebate of ₹30 not recorded in cash book. कैश बुक में 670 रुपीज रिकॉर्ड हुआ नहीं है। ओके, नाउ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सम हमें क्या करना होगा, टोटलिंग करना होगा। इफ यू विल चेक इट आउट, द टोटल्स ऑफ क्रेडिट इज मोर 21,300, उसमें से सारे आपके डेबिट्स को आपको माइनस कर देना है। वी विल शिफ्ट दिस टोटल ऑन द डेबिट साइड एंड द डिफरेंस appears is 4830. I am not showing totaling because in my previous videos and previous sums I have already shown and taught to you how to take out the difference. Now we have started with cash book, we will end with passbook. Passbook ka debit is your bank OD, so we will write bank overdraft as per passbook 4830. Now your today's homework is question number 7, which I taught you right now. Along with that, same type of illustration number 8 is there. Please do solve without seeing. Thank you, students.